Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 23rd November 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the olive Ridley turtles. So the news says that pairs of olive Ridley turtles have been emerging on the sea waters of the Gahirmatha Marine Sanctuary. अब ये जो Gahirmatha Maritime Sanctuary है, it is found in Odisha की coast में. And ये जो olive Ridley sea turtles है, इसी के बारे में हम आज discuss करेंगे about the status of it. और कहाँ पे पाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे. And because they have re-emerged, or you can say the emergence of the olive Ridley turtles in pairs, now this basically indicates the commencement of the annual mass nesting के बारे में. ठीक है. So this can be important for prelims. From means it can be important from GSP property conservation point of view. It has been sourced from the Hindustan Times. So as I was saying, the pairs of olive Ridley turtles have been emerging in the sea waters of the Gahirmatha Marine Sanctuary along the Odisha coast. अब ये क्या mark करता है? Their arrival, their emergence marks the commencement of the annual mass nesting of this endangered maritime species. अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे mass nesting के बारे में, तो mass nesting और इसे एरिबादा भी कहा जाता है. तो it represents the behavior of the turtles which occur over a period of days when hundreds to thousands of the female turtles they come to the beach and lay eggs. Okay, so this टाइम जो है इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट यू कैन से फॉर द टर्टल्स के लिए बिकॉज इट इज द टाइम फॉर द नेस्टिंग. एंड अगर हम बात करेंगे अबाउट द ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज दैट ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स. So they are the smallest and the most abundant of all the sea turtles found in the world. These turtles are carnivorous in nature and they get their name from the olive colored carapace. They are best known for their unique mass nesting. ठीक है, अब जो इनका जो प्रैक्टिस है मास नेस्टिंग का जिसे कहा जाता है अरिबद्धा, now this is the reason why they're best known for it, where thousands of female come together on the same beach to lay eggs. So currently they have emerged at the Gahirmatha beach or the Gahirmatha sanctuary of the Odisha coast में. तो अगर हम यहाँ पे हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, सो दिस यू कैन से इज द गाहिरमाथा बीच. तो यहीं पे द ऑलिव रिडली टर्टल्स हैव रीइमर्ज्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन. तो देखिए उनका जो नेस्टिंग है इट बेसिकली टेक्स प्लेस अराउंड नवंबर और दिसंबर के टाइम में. सो दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन. तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि बिकॉज दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स, तो दे आर मोस्टली लिमिटेड टू द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड ओनली. ठीक है, द ओडिशास गाहिरमाथा मैराइन सेंचुरी इज नोन एज द world's largest rookery. तो rookery होता है colony of breeding animals and this largest rookery is for the sea turtles के लिए. ठीक है, so this Gahirmatha is really important. You should know where it lies. और protection status के बारे में अगर हम बात करेंगे तो it is Wildlife Protection Act में of 1972 में it is basically in Schedule 1 and the IUCN Red List जो है it is a vulnerable species and sites के according it lies in the Appendix 1 में. ठीक है, so here you will find the olive Ridley nesting beach यहाँ पे. ठीक है, so this basically is found in the state of Odisha. Now you should know that there are certain threats that are faced by the olive Ridley turtles. The first one is that अब देखिए लोग क्या करते हैं, जो turtles है you know that meat को consume किया जाता है. तो the first one is about the human consumption because they are extensively poached for their meat and also their shell and the leather के लिए भी use किया जाता है and for eggs as well. तो यहाँ पे जो उनका shell रहता है या जो carapace रहता है, now this is also quite useful for the leather purpose के लिए. उसके बाद अगर हम देखेंगे the marine pollution and waste. तो you know the industries basically वो क्या करते हैं, they रिलीज द वाटर इन टू द ओशन. तो उससे क्या हो जाएगा, जो वाटर पोल्यूशन है वो काफी बढ़ जाता है. नाउ दिस इज नॉट जस्ट डेट्रीमेंटल फॉर द टर्टल का जो स्पीसीज है, बट इट इज डेट्रीमेंटल फॉर एवरी मैराइन स्पीसीज. एंड एवर इंक्रीजिंग डेब्री ऑफ प्लास्टिक्स, देन फिशिंग नेट्स, डिस्कार्डेड नेट, पॉलिथीन एंड अदर गार्बेजेस डाउन बाय द टूरिस्ट एंड फिशिंग वर्कर्स थ्रेटन ऑल द सी टर्टल्स एंड डिग्रेड देयर हैबिटेट. और अगर हम बात करेंगे अपने फिशिंग ट्रॉलर्स के बारे में, सो ट्रॉलर्स यू शुड नो देयर आर फिशिंग नेट्स होते हैं, देयर आर पुल्ड अलोंग द बॉटम ऑफ द सी और इन द मिड वाटर एट अ स्पेसिफाइड डेप्थ में. ठीक है, नाउ इससे क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सच नेट की वजह से नाउ दे गेट स्टक. ठीक है, तो ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द मैराइन रिसोर्सेज बाय यूज ऑफ ट्रॉलर्स. तो ट्रॉलर्स यूज किया जाता है ताकि लार्ज स्केल में जो फिशिंग को किया जा सके, इसीलिए यहाँ पे ट्रॉलर्स यूज किया जाता है. ठीक है, बाय यूज ऑफ ट्रॉलर्स ऑफन वायलेट्स द रूल टू नॉट फिश 20 किलोमीटर्स विद इन अ मैराइन सेंचुरी. तो ये जो गहिरमाथा जो ये वाइल्ड लाइफ जो मैराइन सेंचुरी है, तो यहाँ पे द रूल सेज द फिशिंग इज नॉट अलाउड एटलीस्ट टिल 20 किलोमीटर्स, बट यूज ऑफ द ट्रॉलर्स इट बेसिकली वायोलेट्स द रूल. एंड देयर वर आल्सो इंजुरी मार्क्स ऑन मेनी turtles indicating that they have been trapped on the trawls or the gill nets. तो ये जो यहाँ पे जो marks है, so this marks of getting hurt also indicates that obviously यहाँ पे जो trawls है, तो trawlers यहाँ पे use किए जाते हैं and they have been hurt from there only.
तो आप देखोगे इंडिया के केस में देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द ऑलिव रीड टर्टल. द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन ऑफ देम इज द ऑपरेशन ओलिविया. ठीक है, नाउ दिस यू शुड नो. ओलिविया देखिए यहाँ पे क्या, एवरी ईयर द इंडियन कोस्ट गार्ड्स ऑपरेशन ओलिविया वो कंडक्ट कराते हैं मेनली इन विंटर सीजन में. तो इट इज इनिशिएटेड इन द अर्ली 1980s में स्टार्ट किया गया था. इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द ऑलिव रिडली टर्टल्स एज दे कॉन्ग्रीगेट अलोंग द ओडिशा कोस्ट फॉर ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर. तो ये टाइम में द इंडियन कोस्ट गार्ड जो होते हैं वो काफी अलर्ट रहते हैं, सो दैट नो पोचिंग एक्टिविटीज कैन बी कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस टाइम. इट ऑल्सो इंटरसेप्ट द अनलॉफुल ट्रॉलिंग एक्टिविटीज एज वेल, ताकि इसे भी प्रिवेंट किया जा सके. एंड अबाउट द मैंडेटरी यूज ऑफ टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस. अब देखिए जो ट्रॉलर्स है, ट्रॉलर्स में हम यहाँ पे बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हम यूज कर सकते हैं टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस, जिसे TED कहा जाता है. ठीक है, नाउ टू रिड्यूस द एक्सीडेंटल किलिंग इन इंडिया, द ओडिशा गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ट्रॉल्स टू यूज टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस. अब मान लीजिए कि अगर आप ये TED यूज करते हैं ना, तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी टर्टल्स है नाउ दे विल बी एबल टू एस्केप फ्रॉम द नेट्स. ठीक है, नाउ दिस इज बेसिकली अ नेट व्हिच इज स्पेशली डिजाइन्ड विद एन एग्जिट कवर, और ये जो एग्जिट कवर इट इज मेंट फॉर द टर्टल्स ओनली, व्हिच विल अलाउ द टर्टल्स टू एस्केप while retaining the catch. एंड टैगिंग यहाँ पे देखिए हम गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक आप कह सकते हो इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे टैग किया जाएगा. सो यहाँ पे जो टैग है इट इज बेसिकली गोइंग टू यूज अ नॉन कोरोसिव मेटल टैग. तो इससे अगर हम यूज करेंगे ऑन द ऑलिव रिडली टर्टल, तो इससे क्या हो जाएगा, इट इज डन टू एनेबल द साइंटिस्ट टू चार्ट देयर मूवमेंट, कि वो किस तरीके से वो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, वो कहाँ पे ब्रीडिंग कर रहे हैं, या वो कहाँ पे नेस्टिंग कर रहे हैं. तो उससे क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी एबल टू टेक अप सर्टेन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स एज वेल. ठीक है, तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about the severe climate disasters of the current year, and also we'll look at the conclusion of the COP27 because it has finally ended. Now, in the number of analysis, I've already covered about the various aspects of COP27, which was basically conducted in Egypt. तो इसके बारे में अभी हम विल बी टेकिंग अप द कंक्लूडिंग फैक्ट्स अबाउट इट. एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पे हम कुछ डिजास्टर्स के बारे में बात करेंगे. विल लुक एट द रियलिटी कि दुनिया में क्या हो रहा है. ठीक है, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज से एक ना एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पूछा जाता ही है, बीट इन दी एसे, बीट इन दी GS पेपर 3, GS पेपर 1. तो इसे किस तरीके से आप टैकल करोगे. और देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में इट इज नॉट जस्ट इनफ टू मेंशन अबाउट दी नॉर्मल फैक्ट, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, सी वाटर जो राइज है उसके बारे में. तो ये तो सारा चीज जो है वो सब का आंसर में पाया जाता है. बट यू शुड बी स्पेसिफिक इनफ. आप यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि जो रिसेंट टाइम्स में क्या क्या यहाँ पे आप कह सकते हो कंसिक्वेंस हुआ है, या किस तरीके से सम ऑफ द इवेंट दैट आर एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज ओनली. तो अगर इस तरीके से आप आंसर लिखते हो देन यू विल बी एबल टू फेच सम एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट. तो यहाँ पे न्यूज बताया गया है कि वो डेवलपिंग एंड वल्नरेबल नेशंस जो है दे कंटिन्यूइंग टू डिमांड द क्लाइमेट फाइनेंस. मैंने कल के सेशन में कवर किया था अबाउट द लॉस्ट एंड डैमेज फंड के बारे में. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द लाइव्स हैव ऑल्सो बीन सीवियरली affected by a global catastrophe, especially in the year 2022. तो climate change से क्या क्या यहाँ पे impact हुआ है, we'll look at it at the global level, the Indian level as well, because you'll be able to use those facts in the answer. This can be important for the GS paper and for the cyclone or the geography point of view. From GS paper to climate change point of view has been taken from the Indian Express. तो देखिए हम यहाँ पे एज आई वाज सेइंग बात करेंगे अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल, सम ऑफ द इवेंट्स के बारे में व्हिच हैव टेकन प्लेस इन द रीसेंट पास्ट में. तो द फर्स्ट वन यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट द पाकिस्तान फ्लड्स के बारे में. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग यू विल फाइंड नेचुरल डिजास्टर्स व्हिच हैव टेकन प्लेस इन द करंट टाइम्स, जहाँ पे देखिए 62% लेस रेनफॉल तो हुआ था इन द मंथ ऑफ मार्च में, बट इट ऑल्सो रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट अप्रैल. ठीक है, बिकॉज इट इज द मंथ व्हिच इज प्रिसीडिंग द मॉनसून सीजन. तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया था, because of this particular heat waves के कारण तो glaciers also started to melt. ठीक है, now this led to the rivers to swell. तो basically आप कह सकते हो the uprising of the water level took place and which basically led to the tremendous flooding in the regions of Pakistan में. ठीक है, तो आप देखोगे access to basic necessities जो है became difficult for 33 million people. तो you should know पाकिस्तान का जो population है it is around 220 million population. तो इसमें से 33 million people जो है now they had already lost their access to the basic amenities. ठीक है, मान लीजिए द फूड, वाटर, whatever it is. और यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ इंडिया में भी हुआ था बट नॉट इन दिस मैसिव स्केल में. तो इंडिया में इट टुक प्लेस इन द केस ऑफ बेंगलोर में. ठीक है, इट वाज ऑलमोस्ट इन द सेम टाइम ओनली व्हेन बेंगलोर आल्सो वाज फेसिंग ट्रेमेंडस फ्लड
एंड एक्सट्रीम रेनफॉल अगर आप देखोगे फर्दर ट्रिगर्ड द मोस्ट डिवास्टेटिंग फ्लड फ्रॉम जून से लेकर सितंबर तक. सो इट इज वेरी लॉन्ग पीरियड व्हिच इज बेसिकली ब्रॉट अबाउट बाय मॉनसून विंड्स ओनली. ठीक है, द फ्लड वाज द वर्स्ट इन द कंट्रीज रिसेंट हिस्ट्री. ओवर 1500 पीपल वर किल्ड इन दिस फ्लड विद मिलियंस बीइंग डिस्प्लेस्ड एंड डेवलपिंग सीरियस हेल्थ इश्यूज सच एज स्किन इन्फेक्शंस, मलेरिया एंड डायरिया. अब देखिए पानी जो है, पानी आप मान लीजिए व्हेनेवर द वाटर लेवल राइजेस इट इज फ्लड. तो फ्लड क्या होता है, पानी जब लेवल कम हो जाता है तब फ्लड तो ऑब्वियसली कम हो ही जाता है. बट एक बार फ्लड कॉज होने के बाद आप देखोगे जो इश्यूज होता है ना, ये फ्लड के बाद आता है. ठीक है, तो फ्लड तो हो गया ऑब्वियसली द पीपल का यहाँ पे घर डिस्ट्रक्ट होता है, बहुत सारे इश्यूज तो है ही. बट अब देखोगे जो हेल्थ के पर्सपेक्टिव में, हाइजीन के पर्सपेक्टिव में से भी अब अगर देखोगे द पीपल, द पॉपुलेशन दे फेस अ नंबर ऑफ स्ट्रगल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन होता है, ठीक है, मलेरिया, डायरिया. तो लाइक इट टेक्स, आप कह सकते हो कि इट ऑलमोस्ट टेक्स अ डिकेड टू कम आउट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सच ट्रिमेंडस फ्लड. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट यूएस के बारे में. तो यूएस का अगर हम यहाँ पे इम्पैक्ट के बाद में बात करेंगे, वी कैन स्पीक अबाउट हरिकेन इयान के बारे में. तो हरिकेन इयान जो इट वाज द लार्जेस्ट, लाइक आप कह सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द डिस्ट्रक्टिव अटलांटिक हरिकेन था, व्हिच वाज द डेडलीस्ट हरिकेन टू स्ट्राइक दिस स्टेट ऑफ फ्लोरिडा. ठीक है, फ्लोरिडा में ये हुआ था. सो हरिकेन्स आर, यू शुड नो, इट इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म्स ऑन द प्लेनेट. ठीक है, हम इंडिया के केस में हम इसे साइक्लोन्स कहते हैं. ठीक है, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही है. और हरिकेन्स एज यूएस like calls it, now they use warm and moist air as fuel and therefore form over the equatorial warm water में. ठीक है, तो hurricanes are basically tropical cyclones and they're enormous storms which comes with the rotating wind speed of 74 miles per hour. Should know about such fact. And यहाँ पे नासा ने बताया है कि the warm ocean waters in the Gulf of Mexico powered the hurricane Ian. ठीक है, अब ये warm water was basically fueling this hurricane, or you can say fueling this tropical cyclone in the US towards the end of the September 2022. तो यहां पे हम जब देखेंगे, मेकिंग इट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन टू हिट द कंट्री इन रीसेंट मेमोरी. इट आल्सो रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ 101 लाइव्स, व्हिच इज नॉट लेस देन द पाकिस्तान, व्हिच इज नॉट क्वाइट लेस देन द पाकिस्तान फ्लड. एंड आल्सो इट लेड टू द मॉनेटरी लॉसेस ऑफ मोर देन $100 billion. The disaster was the costliest climate induced disaster of the year. The escalation brought severe floods आता है, relentless rains and strong winds to southwestern Florida. तो obvious सा बात है, जब भी ऐसा tropical cyclones होता है, आपने देखा होगा इंडिया के केस में भी, in the places like West Bengal, then the places like Odisha, then Maharashtra जैसे coastal regions में यहाँ पे काफी impact होता है, because tropical cyclones के साथ साथ it also brings about a lot of moisture into the region causing tremendous flood, right? अब अगर हम यहाँ पे यूरोप के बारे में बात करेंगे, यू मस्ट हैव हर्ड इन द न्यूज अबाउट द ड्रॉट्स के बारे में, जहाँ पे रेनलेसनेस कंडीशंस यहाँ पे इट वाज फेस्ड बाय यूरोपियन नेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे जब जून का जो टाइम है, सो जून एंड जुलाई का इस साल का ये टाइम है, यूरोप वाज हिट बाय 2 एक्सट्रीम हीट वेव्स व्हिच क्लेम्ड अप्रॉक्सीमेटली 16,000 लाइफ. ठीक है, नाउ दिस ईयर्स ड्रॉट इज लाइकली टू बी द वर्स्ट ड्रॉट इन 500 ईयर्स. ऐसा 500 साल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था. द वाटर लेवल्स इन द केस ऑफ द यूरोप्स बिगेस्ट रिवर, फॉर एग्जांपल राइन, पो, लॉयर, Danube, now it shrunk in a rapid rate. ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो गया था. and dry conditions it continued to prevail in different parts of the continent. Now as you can see in this picture, this is of the current times only, जो कि यूरोप में फेस किया गया था because of the extreme heat waves के कारण. ठीक है, तो ऐसा heat wave अभी यूरोप में 500 years में आप ऐसा माना जा रहा है कि it is one of the worst one. ठीक है, तो राइन जो है, राइन you should know it is like important river of the European nations like Switzerland, Austria, then Germany, France. ठीक है, and आप यहाँ पे बात कर सकते हो ऑफ नेदरलैंड्स एज वेल. ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट डैन्यूब, वी शुड नोट इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जर्मनी. देन पो, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इटली. एंड लॉयर जो रिवर है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस. एंड फाइनली हम अगर इंडिया के बारे में बात करेंगे, देखिए इंडिया का भी इस बार काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है. ठीक है, ऑल्सो यू कैन स्पीक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो फ्लड होता है, असम के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं. देन ऑल्सो यू कैन स्पीक अबाउट द साइक्लोन असानी के बारे में, साइक्लोन सितरांग के बारे में. सितरांग तो बहुत रिसेंटली आया था. ठीक है, विच हैड बेसिकली इमर्ज्ड इन द बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है उसमें हिट किया था. एंड ऑल्सो इट लेड टू ट्रिमेंडस यू कैन से रेनफॉल इन द केस इन द रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज वेल. एंड वी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द फ्लड्स इन बैंगलोर के बारे में, यू कैन गिव द examples. And also in one of the analysis I've also covered about the climate change का जो एक impact है, it was seen in the shifting of monsoon to the central India region. तो जब भी monsoon होता है, जो winds का convergence होता है ना, that normally takes place in the North Indian region. तो इस बार लेकिन यहाँ पे shifting हुआ है, which has also been आप कह सकते हो कि it is also quite harmful for the agriculture. ठीक है, so India recorded natural disasters almost every day in 2022. India recorded extreme weather events of on 241 of 273
73 डेज, ठीक है। तो पहला जो 9 मंथ्स है, तो ये पहला 9 मंथ्स में 73 डेज में से 241 डेज में एक्सट्रीम यहाँ पे इवेंट्स ही हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ सकता है या बहुत कम हो गया है, ड्राइनेस हुआ है, फ्लड हुआ है, सो एवरी एक्सट्रीम इवेंट्स आर बेसिकली टेकिंग प्लेस इन दिस ईयर। थंडरस्टॉर्म्स, persistent rain, cyclones, drought, तो everything is basically happening, heat waves के बारे में, so this all occurred throughout these 9 months, all right। तो हिमाचल प्रदेश recorded the highest number of deaths followed by Assam and मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो डेथ है, this is mainly because आप देखोगे साइक्लोन से क्या कॉज होता है, साइक्लोन से कॉज होता है, आप देखोगे it basically leads to the event of flood हो जाता है, ठीक है। आप देखोगे जो persistent rain है, thunderstorms है in places like हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड कॉज करेगा, है कि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट कॉज करता है। तो ऐसे केस की वजह से यू विल फाइंड क्वाइट lives are lost in this like events, ठीक है। ओवरऑल दिस डिजास्टर्स इट क्लेम्ड अराउंड 2755 lives, ठीक है, affected 1.8 million hectares of crop area, destroyed over 416,000 houses and also killed to close 70,000 livestock. So much of damage has been caused in India as well. So these facts are important because this can be used, this can be applied in the questions if it is asking about climate change, both at the global level and the national level में। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो COP27 के बारे में, बिकॉज इट इज फाइनली कंक्लूडेड। तो यहाँ पे मैंने कल ही कवर किया था अबाउट द लॉस एंड डैमेज के फंड के बारे में। तो इट इज बेसिकली क्लाइमेट को टैकल करने के लिए जो चेंजेस है, तो इसका इंपैक्ट को मीट करने के लिए फंड क्रिएट किया गया है बाय द UN। तो इस फंड में क्या किया जाएगा, जो वल्नरेबल कंट्रीज है, जो डेवलप जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनको हेल्प किया जाएगा, बिकॉज दे आर द कंट्रीज हु आर ऑफन रिक्वायर्ड टू फेस द बर्न ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पे बात हुआ अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में। COP27 a new 5-year program लिया गया है to launch, which was launched to promote the climate technology solutions in the developing countries में। तो यहाँ पे mitigation के लिए भी बात हुआ है। A mitigation work program was launched at the COP27 which aimed at urgently scaling up the mitigation ambition and the implementation as well। The working program जो है it will start immediately following the COP27 खत्म होते ही start हो जाएगा and will continue till 2030 with at least 2 global dialogues यहाँ पे हर साल conduct किया जाएगा in order to track the progress of such mitigation measures। और अगर हम बात करेंगे अबाउट ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में, so the delegates at the UN CCC, that is the COP27 में, so they have wrapped up the second technical dialogue of the first global stock take। तो यहाँ पे first जो global stock take है, इसमें जो second technical dialogue is finally been concluded and this stock take जो is a mechanism to raise the ambition under the Paris Agreement। Paris Agreement जहाँ पे हम बात करते हैं about limiting the global warming, about limiting the rise of temperature by 1.5 degree or 2 degree as compared to the pre-industrial level। तो इसी के बारे में ही यहाँ पे जो एम्बिशियस प्रोग्राम जो लिए जाते हैं, इसी को टैकल करने के लिए मैकेनिज्म एक लाया गया है, द ग्लोबल स्टॉक टेक। एंड देन अगर हम बात करेंगे अबाउट द एडेप्टेशन एजेंडा भी यहाँ पे साइन किया गया है द शार्म एल शेख। तो दिस इज द सेम प्लेस वेयर द COP27 इज बीइंग हेल्ड। तो यहाँ पे एक एजेंडा साइन किया गया है व्हिच आउटलाइंस 30 एडेप्टेशन आउटकम्स टू एनहांस द रेजिलियंस फॉर 4 बिलियन पीपल के लिए लिविंग इन द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज बाय 2030। और यहाँ पे एक नया प्रोग्राम आप यहाँ बताया गया है अबाउट द अवेयर। तो अवेयर का आपको पूछ देगा डायरेक्टली, यू विल बी आस्क्ड अबाउट द फुल फॉर्म। तो इट स्टैंड्स फॉर एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन and resilience initiative। देखो तो यहाँ पे it has been launched to reflect the importance of water। तो water के लिए देखिए water has been stressed in 2 ways। एक तो हो गया यहाँ पे it's a key climate change problem जहाँ पे the water has been जो level है वो rise हो रहा है and it is also a potential solution as well। देखिए आप देखोगे flood के केस में, आप देखोगे in the case of the persistent rainfall के केस में it is water only which is causing the damage, but then again it can also be used as a potential solution as well। और इसके बाद ACMI, that is the African Carbon Market Initiative, it was launched to support the growth of carbon credit production and create jobs in Africa। The Global Renewable Alliance के बारे में भी यहाँ पे बात हुआ है। It brings together for the first time all the technologies required for the energy transition। Now we always speak about like limiting the carbon emission। ठीक है, अब carbon emission अगर आप limit करते हैं then definitely we have to find some sustainable solution। तो solution यहाँ पे बात होता है about transition to the renewable energy sources। ठीक है, because you know that carbon is a non-renewable source of energy। तो इसीलिए so that we can take an easy or a smooth shifting or a transition from the non-renewable to the renewable। तो इसीलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजीज को एक साथ मिलाया गया है which aims to position renewable energy as a pillar of sustainable development and economic growth।
The next article is about Northeast के बारे में and Northeast in general, Assam in specific, and this is about General Lachit Borphukan के बारे में of the Ahom Kingdom. अब देखिए he has recently been in the news because of the 400th birth anniversary of him. ठीक है, तो he is known as the legendary war hero Lachit Borphukan. Now it will be celebrated in New Delhi from 23rd. This आज से celebrate होगा till 25th of November 2022. Now this because it is the 4th birth anniversary of such a you can say of such a legendary war hero. So this is the reason why I'm covering it, and it is also important to be focused on his achievement because it can be asked in our examination directly, and it can be important from the prelims, also from mains. It can be important from GS paper on medieval Indian history point of view. It has been taken from the Hindu. So you must be knowing about the Mauryan rule के बारे में आपने शायद सुना होगा, which lasted for 142 years. अगर आपने मुगल डायनेस्टी के बारे में सुना होगा, it lasted for around 330 years. The Gupta rule के बारे में it lasted for around 290 years, but very less is known about the Ahom dynasty of Assam. ठीक है, तो because you should know that the Indian history जो है it is quite Delhi centric in nature. हम मौर्य का बात करते हैं, गुप्ता का बात करते हैं, हम यहाँ पे मुगल्स का बात करते हैं, हम we talk about the Delhi Sultanate as well, but what we miss is that we miss out we miss out the details, or we miss out the events that took place in some far east places. ठीक है, जैसे कि आसाम के केस में हम यहाँ पे मिस कर जाते हैं ऑफ द आहम डायनेस्टी. ठीक है, द हिस्ट्री एक्चुअली फेल्स. ठीक है, आप कह सकते हो इंडियन हिस्ट्री जो इट कंप्लीटली फेल्स इन मेंशनिंग सच आप कह सकते हो कि सच ग्लोरियस डायनेस्टी, बिकॉज आउट ऑफ ऑल द डायनेस्टी जो मैंने आपको भी कहा है, आहम डायनेस्टी रूल द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर 598 लॉन्ग ईयर्स. ऑलराइट, इट इज ऑलमोस्ट 600 ईयर्स तक यहाँ पे आहम डायनेस्टी ने रूल किया था. ठीक है, एंड यू शुड ऑल्सो नो, हम यहाँ पे बात करते हैं मुगल्स के बारे में, हम बाबर के बारे में बात करते हैं, बट व्हाट वी फेल टू रिकॉग्नाइज इज दैट Ahoms एक ऐसा डायनेस्टी है which basically defeated the Mughals 17 times in a span of 60 years. ठीक है, लेकिन as I told you कि ये जो अब देखो इंडियन हिस्ट्री है, the one that we study, the one that NCERT wants us to study, वहां पे आप देखोगे it is completely Delhi centric in nature. It fails to recognize, it fails to identify the contributions and the achievements of such dynasty like one that of the Ahom dynasty. तो अगर हम बात करेंगे about लाचित बोरफुकन के बारे में, he was born on 24th November and कल का ही दिन 24 नवंबर. दिस इज द रीजन व्हाई उनका जो एनिवर्सरी है 400 बर्थ एनिवर्सरी हैज बीन ऑब्जर्व्ड. सो ही वाज बोर्न इन द ईयर 1622 में. ठीक है, तो इस साल 400 साल पूरा हो जाएगा उनका बर्थ एनिवर्सरी का. ही वाज नोन फॉर हिज लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सरायघाट. द मोस्ट फेमस अचीवमेंट ऑफ हिम वाज द बैटल ऑफ सरायघाट ऑफ 1671 में, इन व्हिच एन अटेम्प्ट बाय द मुगल फोर्सेस टू कैप्चर असम वाज थ्वार्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे द मुगल फोर्सेस वाज लेड बाय द जनरल कॉल्ड राम सिंह. बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ही बेसिकली लाचित बोरफुकन हैड कंप्लीटली फेल्ड द अटेम्प्ट ऑफ द मुगल्स. द बैटल ऑफ सरायघाट यू शुड नोटिस फॉट ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी इन 1671 ईयर. इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेवल बैटल्स ऑन अ रिवर व्हिच रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ Ahoms over the Mughals. Right, he was the inspiration behind strengthening India's naval force and revitalizing inland water transport and creating infrastructure associated with it due to its great naval strategies. And you should also know that currently inland water transport के जो minister है, he also belongs to the state of Assam, the ex-CM there is Sarbananda Sonowal. The Lachit Borphukan gold medal भी दिया जाता है, is awarded to the best cadet for the NDA, that is the National Defence Academy. The medal was instituted in 1999 में to inspire defense personnel to emulate. ठीक है, उनको यहाँ पे इंस्पायर किया जाता है so that अगर sacrifice करना है, if you want to be courageous, then you should always follow the principles of Borphukan's heroism and sacrifice as well. But finally he died on 25th of April 1672. Now a little about the Ahom kingdom के बारे में. You should know it was established in the year 1228 में ऐसा establish कर दिया गया था in Brahmaputra Valley, and the first ruler, I think you know it, his name is Sukafa. ठीक है, तो the Ahom kingdom it retains its sovereignty for 600 years. The kingdom जो it was founded by Chawlang Sukafa, a 13th century ruler. The Ahoms ruled the land till the province was annexed to British India in 1826. तो देखिए 1228 से 1826. ठीक है, तो 598 years यहाँ पे Ahom रूल करते हैं. फाइनली उनका रूल खत्म हो जाता है विद द ट्रीटी ऑफ यांदाबू व्हिच वाज साइंड ऑन 24th of February 1826.
ठीक है. So renowned for his bravery, the Ahoms didn't, I mean their bravery, the Ahoms didn't even fall to the might of the powerful Mughal Empire. As I told you, they were been able to defend their territory, their dynasty for 17 times against the Mughal. Alright, अब ये जो dynasty was established by Sukafa, who was a Sham prince, जो कि Mong Mao से आए थे, और Mong Mao it currently lies in the present Yunnan province में lie करता है in China. So he came to Assam after crossing the Patkai mountains से होते हुए वो आए थे, ठीक है. And about the political setup के बारे में, the Ahoms created a new state by suppressing the older political system of the Bhuyas, and Ahom states were dependent upon forced labor. This forced to work for the state were also known as pike, who were basically forced, or you can say कि उनका their job was to serve the places or serve the state. So about the Ahom kingdom के बारे में, we should also know about the society के perspective में you should know the Ahom society was the खेल या से clan भी कहा जाता है. So ये जो खेल है, खेल के अंदर बहुत सारा रहता है villages, and you should know that Ahom worship their own tribal gods, yet they accepted the Hinduism also. Later on time we see a number of Ahom जो है they adopt the titles of Hinduism as well, ठीक है, and the Assamese language भी वो adopt कर लेते हैं. Then however the Ahom kings did not completely give up the traditional beliefs after adopting Hinduism. Intermarriage जो है वो भी practice होता है in the Ahom culture में, but this already आप कह सकते हो कि this basically led to the assimilation processes of the Ahoms in the Assamese culture. Then art and culture के perspective में poets and scholars were given land grants and theatre was encouraged. And if we talk about the important work of Sanskrit, they were translated to Ahom or the local language as well. Historical works अगर हम बात करेंगे, बुरंजिस कहा जाता है. Now they were also written first in the Ahom language and then ये आता है Assamese में. इसके बाद मिलिट्री जो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, एज आई टोल्ड यू दे आर सो पावरफुल. नाउ वन रीजन फॉर दैट इज दैट ये जो सुप्रीम कमांडर होता है उनका आर्म फोर्सेस का, इट इज द Ahom किंग हिमसेल्फ, ठीक है. सो ही वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द स्टेट एज वेल एज द मिलिट्री. द Ahom किंग हिमसेल्फ लेड द स्टेट फोर्सेस इन द टाइम ऑफ वॉर्स. द पाइक्स वेर द मेन आर्मी ऑफ द स्टेट. तो जो मेन आर्मी है वो पाइक्स ही होते हैं, वो बेसिकली वो फोर्स लेबरर्स रहते हैं, ठीक है. अब दो तरीके का पाइक होता है, एक होता है सर्विंग, होता है नॉन सर्विंग, ठीक है. सर्विंग होता है जो ऑब्वियसली आर्मी में है, एंड द नॉन सर्विंग पाइक जो है इट कंस्टिट्यूटेड अ स्टैंडिंग मिलिशिया. तो वो एक रिजर्व तरीके का एक फोर्स रहता है व्हिच कुड बी मोबिलाइज्ड एट अ शॉर्ट नोटिस बाय द खेलदार. खेलदार होता है आपका एन एक्सपर्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजर, ठीक है. The full contingent of the Ahom, it consisted of infantry, navy, artillery, elephantry, cavalry and spice. It was basically a vast kingdom, you can say. The main war weapons consisted of bows and arrows, swords, javelin, discus, guns, then matchlocks and cannons. Alright, the Ahom sent spies to the enemy's camp to study the strength and the war strategies of the enemies before leading an expedition. Alright, the Ahom soldiers के बारे में अगर हम बात करेंगे, they were experts in guerrilla fighting. तो sometimes इसमें क्या हो जाता है guerrilla fighting में, they allowed the enemies to enter the country. वो अलाउ करते हैं कि आ जाइए ब्रह्मपुत्र वैली में एंटर कीजिए. बाद में लेकिन उनको क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन उसे कट ऑफ कर दिया जाता है, उनको चारों ओर से उनको घेर के उनको मारा जाता है, ठीक है. सो दिस इज द टैक्टिक्स दैट दे यूज्ड टू फॉलो. इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट. इसका बस लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये मेघालय में इट इज बीन ऑर्गेनाइज्ड, और ये जो बॉडी है इसके बारे में हम बात करेंगे कि हु इज ऑर्गेनाइजिंग इट. सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. तो द 7th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट किक्ड ऑफ एट द नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी एट उमसाव, ठीक है. नेपाल आपने सुना होगा जहाँ पे ट्रेनिंग भी होता है यहाँ पे पुलिस फोर्सेस का. तो द समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विबजियोर नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन. अब ये जो विबजियोर नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स अप ग्रीन इश्यूज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. अटेंडिंग द वेरिडिक्टर, दैट इज अ फेयरवेल स्पीच जो था यहाँ पे, द अरुणाचल वाज रिप्रेजेंटेड बाय द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर, दैट इज मामा नातुंग, and he advocated mitigating climate change by adopting a sustainable lifestyle. Okay, he has basically stood up for adopting a sustainable lifestyle. So informing about the Pocket Declaration के बारे में भी इन्होंने inform किया, you must have heard about it. तो ये जो Pocket Declaration है, it is aimed at promoting sustainable lifestyle and mitigating climate change. Alright, so he also explained how the tribal communities of Arunachal are contributing in conserving the environment, wildlife and forest as well. He also highlighted the action plans जो भी लिए गए हैं under the Pocket Declaration में in conserving the species diversity, and also urge the people, ठीक है, to treat the flora and the fauna around them as their family only. इसी टॉपिक के बेसिस पर एक और प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
तो ये सारा क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको लास्ट वीडियोस में. लेट्स लुक एट द आंसर्स. सो द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आर, तो पहला यहाँ पे बात हुआ था अबाउट द वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म के बारे में फॉर लॉस एंड डैमेज व्हिच इज बेस्ड फॉर द क्लाइमेट. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी एंड द ब्लू रिवॉल्यूशन वाज रिलेटेड टू द फिश प्रोडक्शन. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.